میری خالہ کا بیٹا سلیم بہت نیک تھا، اس لیے اماں نے میری شادی اس سے کر دی، پر وہ ساری رات عبادت کرتا، مجھے دیکھتا تک نہیں۔ میں نے بھی غیر لڑکے سے دوستی کر لی، میں اس کے ساتھ گھومتی۔ ایک دن اچانک حاملہ ہو گئی، طلاق لینے کا فیصلہ کیا، پر وہ لڑکا مجھے دھوکہ دے کے بھاگ گیا۔ میں چھپ کے بچہ ضائع کرانے گئی تو ڈاکٹر نے شوہر کو بلوا لیا۔ میں ڈر کے رونے لگی، پر جو ہی حاملہ ہونے کی خبر ملی، شوہر خوشی سے سجدے میں گر گیا۔ میں حیران رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ہوش اڑ گئے جب شوہر کان میں بولا، گھر چل، تیرے کمرے میں۔ میں یہ خبر سن کے ایک دم سے ساکت ہو گئی، گھبرا کے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں ڈاکٹر مجھے دیکھ کے کافی خوش ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ بلکہ جب خواتین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہیں تو وہ تو بہت خوش ہوتی ہیں، مگر آپ کی تو رنگت ہی اڑ گئی ہے ایک دم سے۔ مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا۔ تبھی وہ ڈاکٹر چونک کے بولی، آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ شاید ڈاکٹر کو مجھ پہ شک ہو گیا تھا، تبھی وہ جلدی سے بولی، اپنے شوہر کا نمبر دیں۔ لیکن کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ دیکھیں میڈم، اپنے شوہر کا نمبر دیں، ہمیں ہمارا ہسپتال ایک بہت اچھا ہسپتال ہے، ہم اس کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی افواہ یا کوئی بھی چارہ گری برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تو آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اپنے شوہر کا نمبر ہمیں لا کے دیں، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور یہ بچہ جائز نہیں تو پھر اس سلسلے میں ہم کچھ اور کارروائی کریں گے، کیونکہ آپ کو ہمارے ہسپتال میں آنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو میری رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے سختی سے کہنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر مجھ سے زیادہ سپاٹ لہجے میں بولی، دیکھیں میڈم، نمبر دیں اپنے شوہر کا، اگر تو آپ کے پاس اپنے شوہر کا نمبر نہیں تو اپنے والد کا نمبر دیں۔ چاروں نہ چار مجھے جب کوئی اور دکھائی نہ دیا تو میں نے چپ کر کے اس لڑکے کا نمبر دے دیا جس کا وہ بچہ تھا۔ 2-4 بلیں جانے کے بعد فون کاٹ دیا گیا، اس انسان نے فون ہی نہ اٹھایا۔ ڈاکٹر مجھے دیکھ کے گھورتے ہوئے بولی، کوئی اور نمبر نہیں ہے آپ کے شوہر کا؟ دیکھیں، گناہ یا ثواب ہمارا اپنا فعل ہے، مجھے نہیں لگتا آپ کو ہمارے معاملے میں بولنا چاہیے، آپ مجھے گھر جانے دیں، آئندہ میں آپ کے ہسپتال میں نہیں آؤں گی۔ لیکن ڈاکٹر اپنی بات پہ پکی تھی کہ مجھے ہر صورت نمبر چاہیے تمہارے شوہر کا۔ کافی بحث مباحثے کے بعد میں نے سلیم کا نمبر دے دیا، کیونکہ نمبر دینے کے بعد وہ لوگ مجھے وہاں سے جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ نمبر دے کے میں نے جانے کی کوشش کی تو نرس نے مجھے روک لیا۔ ایک مرتبہ تمہارے شوہر کو آ جانے دو، پھر چلی جانا۔ میں وہاں پر بیٹھ کے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ ڈاکٹر مجھے بڑی شک و شبہات کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سلیم وہاں آ گیا اور مجھے مجرموں کی طرح ایک کونے میں بیٹھے دیکھ کے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نرمی سے پوچھا، کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ جی ڈاکٹر، میری بیوی ہے۔ کب شادی ہوئی آپ لوگوں کی؟ قریب 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ سلیم ڈاکٹر کی بات کا جواب دیتا، پھر ایک نگاہ مجھ پہ بھی ڈال لیتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے اور کیوں یہاں تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، کچھ غلط ہوا ہے کیا جو آپ نے اتنی اچانک مجھے بلایا اور یہ سوال پوچھ رہی ہیں؟ جی سلیم صاحب، بتاتی ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنی شادی کی تصویریں دکھا سکتے ہیں؟ لیکن ہوا کیا ہے؟ آپ کی بیوی حاملہ ہے، اور جس طرح کا رد عمل یہ دے رہی ہیں، انہیں اپنے حاملہ ہونے پہ بھی خوشی نہیں، تو ہمیں شک ہو گیا کہ آیا کہیں یہ بچہ۔ اتنا بول کے وہ لڑکی خاموش ہو گئی، جبکہ میرا دل چاہا آگے بڑھ کے میں اس کا گلا دبوچ لوں۔ اس کا کام علاج کرنا تھا یا خواتین کو چیک کرنا؟ تو خاموشی سے اپنا کام کرتی، دوسروں کے گھر میں عمل دخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے رہ رہ کے اس پہ شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی ہے یہ دیکھیں، ہماری شادی ہوئی ہے، یہ بچہ ہمارا ہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اگلے مہینے بھی چیک اپ کے لیے میں لے آؤں گا۔ آپ کی بات ڈاکٹر ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ سلیم نے مجھے دیکھا، کہا چلے آؤ چلیں۔ میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو ڈاکٹر نے دوبارہ پھر بلایا اور کہا، میڈم کیا آپ ایک بات بتا سکتی ہیں؟ میں نے خفکی سے مڑ کے دیکھا تو وہ نرمی سے بولی، عموماً خواتین اس خبر پہ خوش ہوتی ہیں، لیکن آپ یوں لگ رہا تھا کہ بالکل بھی خوش نہیں، یا پھر آپ یہ بچہ چھپانا چاہتی ہوں۔ اسے سلیم کے سامنے ہی یہ بات پوچھ لی تو وہ نرمی سے بولا، ڈاکٹر صاحبہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کا معاملہ ہے، جتنا آپ نے پوچھا ہے مجھے تو یہ بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اگر آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتی ہے تو آپ کو اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی تفتیش کرنے بیٹھنا چاہیے، سلیم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جبکہ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کا منہ بھی ایک دم سے کھل گیا۔ چلو گھر چلو، یہ کہتے ہوئے سلیم نے مجھے دیکھا اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا آگے ہو گیا۔ میرا دل کام بھی رہا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے کافی خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ جس طرح سے اس نے ڈاکٹر کو اپنی اوقات میں رہنے کا کہا تھا، اتنی دیر سے میں یہ سب نہ کر پائی۔ اگر میں کہہ بھی رہی تو ڈاکٹر پر میرے کہے ہوئے ایک بھی لفظ کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم باہر آ گئے۔ باہر سلیم گاڑی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی، پورا راستہ خاموش رہی، دونوں میں سے کسی نے بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر آئے تو آگے میری ساس انتظار کر رہی تھی۔
हैरत से सलीम को देखते हुए बोली, तुम दोनों तो अलग अलग गए थे, एक साथ कैसे आ गए? और आलिया तुम कहाँ गई थी? सलीम मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास गया और कहा, अम्मा मुबारक हो, तुम दादी बनने वाली हो। ये बात सुनते ही मेरा दिल एकदम से पूरी रफ्तार के साथ धड़कने लगा। मुझे यकीन था कि मेरा शौहर मुझे ताना दे रहा है। सास ने मुझे देखा और फ़ौरन से आगे लपक के मेरा माथा चूम लिया और मुझे ढेरों ढेर दुआएं देने लगी। मैंने हैरत से अपने शौहर को देखा जो अब चारपाई पर बैठा अपना मोबाइल चलाने लगा था। मुझे पूरा माजरा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मेरा शौहर भी अच्छी तरह जानता है कि हम दोनों में शादी के बाद जो भी ताल्लुक़ था ऐसा वैसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। फिर ये इतने फ़ख्र से अपनी माँ को कैसे बता सकता है कि मैं हामला हूँ? मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन सास ने मना कर दिया और कहा, चलो चुप करके जाओ कमरे में और बैठ के आराम करो। मैं शाम को ही काला मुर्ग मंगवा के तुम्हारा सदका देती हूँ। ये वक्त औरत पे बड़ा भारी होता है, जितना ज़्यादा सदका दिया जाए उतना ही अच्छा रहता है। मैंने खामोशी से उनकी बात सुनी लेकिन वहीं पर खड़ी रही। उन्होंने सलीम को देखा और कहा, जाओ बहू को कमरे में ले जाओ, शायद तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो नरमी से उठा और मेरा हाथ पकड़ के कमरे में ले आया। कमरे में आते ही सलीम ने मुझे बेड पे बिठाया और ख़ुद बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि अभी थोड़ी देर बाद वो आएगा लेकिन 1-2 घंटे गुजर गए मगर वो वापस नहीं आया। मैं चुप करके बेड पे लेट गई। दिमाग पूरी तरह से फट रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये बच्चा ये बिल्कुल नाजायज़ है। फिर सलीम इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा था और मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? ना खुश हुआ ना गुस्सा हुआ, बल्कि अस्पताल से लेके अभी तक एक भी जुमला उसने नहीं कहा था। हमारी शादी को तकरीबन 6 महीने हो गए थे और ये 6 महीने मेरे लिए बेहद मुश्किल थे। मेरे भी आम लड़कियों की तरह ही ख्वाब थे कि मेरी शादी होगी, मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करेगा, ढेरों कपड़े होंगे, मेकअप होगा, हम घूमेंगे फिरेंगे। ऊपर से सलीम था भी बहुत खूबसूरत। मेरी सारी सहेलियां एक लम्हे के लिए तो सलीम को देख के मुझ पर रश खाने लगी कि क्या किस्मत पाई है आलिया तुमने, खुद भी इतनी प्यारी और तुम्हारा शौहर भी इतना खूबसूरत है, चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। पहले भी 1-2 रिश्ते आए थे लेकिन वो लड़के खूबसूरत नहीं थे, तो मैंने उन्हें बड़ी बेदर्दी से ठुकरा दिया कि मैं तो किसी राजकुमार जैसे दिखने वाले इंसान से ही शादी करूँगी। फिर यूं ही करते करते सलीम का रिश्ता मेरे लिए आया। अम्मा ने रिश्ते का बताया तो फ़ौरन ही देखते मैंने हाँ कर दी, लेकिन अम्मा ने हाँ न की बल्कि उन्होंने पहले इस्तिखारा किया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे पिछले दोनों रिश्तों में मेरे लिए इस्तिखारा सही आया मगर सलीम की मर्तबा इस्तिखारे में ना आई थी। अम्मा ने मना कर दिया कि हम यहाँ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, जबकि मुझे सलीम बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल ऐसा ही शौहर चाहिए था अपने लिए और सलीम में नैन नक्श से लेकर रंग और कद तक तमाम वो खूबियाँ मौजूद थीं जो मुझे चाहिए थी। मैंने घर में खाने पीने की हड़ताल कर ली और कहा, अम्मा अगर मुझे मेरी पसंद का शौहर मिल रहा है तो क्यों कर रही हो ये सब? अम्मा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि देखो बेटा, हमने अल्लाह से मशवरा किया है, वहाँ पे ना आया है तो हमें नहीं लगता कि हमें ये शादी तुम दोनों की करनी चाहिए। लेकिन मैंने अम्मा को ये बात कह के कायल कर लिया कि मैं अल्लाह से खुद दुआ करूँगी, देखना यही रिश्ता मेरे हक़ में कितना बेहतर हो जाएगा। अम्मा मानने वाली तो नहीं थी लेकिन मेरे मुसलसल इसरार के बाद बिलाखिर वो मान गई। तकरीबन 3 हफ्ते लगे थे मुझे अम्मा को मनाने में। दूसरी जानिब से सलीम की माँ भी मुसलसल फ़ोन करके जवाब मांग रही थी, जबकि अम्मा मेरे कहने पे बार बार टालती आई। बिलाखिर 3 महीने बाद उन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी था कि पहले ना पड़ चुकी है, पता नहीं हमारा रिश्ता चले या ना चले। लेकिन मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की कि हमारा रिश्ता चल जाए। खैर, शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थी क्योंकि सलीम की जल्दी शादी करना चाहते थे उसके घर वाले। मुझे क्या एतराज़ होना था, मैं तो राज़ी खुशी जल्दी शादी के लिए भी तैयार हो गई थी। मैंने शादी की मुकम्मल शॉपिंग अपनी पसंद की थी। मेरे घर वाले मेरी हर बात मान तो रहे थे लेकिन मेरी अम्मी अभी भी दिल से रजामंद नहीं थी। जब मेरी मेहंदी का दिन आया तब भी उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, सोच लो अच्छी तरह आलिया, क्या वाकई में तुम ये शादी कर लोगी? मैंने कंधे उचकाए और कहा, अम्मा कम से कम आप तो ये बातें ना करें, आप तो मेरी हिम्मत हैं। अगर आप ही मुझे यूं बेहिम्मत कर देंगी तो मेरे लिए तो शादीशुदा ज़िंदगी बिताना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। आप जानती हैं ना सलीम मुझे कितना पसंद आया है, और जो शय मुझे एक मरतबा पसंद आ जाए मैं कभी भी वो नहीं छोड़ती। अम्मा खामोश हो गई। इसके बाद दोबारा उन्होंने एक मरतबा भी ये बात नहीं दोहराई। मेहंदी के बाद बारात की बारी आई। शादी करके जब मुझे रुखसती के बाद मेरे ससुराल में लाया गया तो मैं बहुत खुश थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी अच्छा था, बहुत खूबसूरत घर था। घर क्या बल्कि कोठी थी पूरी, और घर में हर तरह की सहूलत और आराइश मौजूद थी। मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया तो वो भी बहुत खूबसूरत था। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं। यूँ लग रहा था कि मैं मुकम्मल तौर पे अपने आइडियल शौहर के साथ आइडियल घर में मौजूद हूँ। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद सलीम आए तो मैं थक चुकी थी, लेकिन मैं खुश भी थी क्योंकि शादी के वक्त यूँ देर सवेर हो जाती है। मैं इस बात को अपने जहन पर सवार करके बिला वजह खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। सलीम आए और आके खामोशी से सोफ़े पर बैठ गए।
मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब वो मुझे मुंह दिखाई देंगे और मेरा घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने गला खनकार के कहा, उठ के कपड़े वगैरह तब्दील कर लो और तुम्हारी मुंह दिखाई साइड टेबल पर पड़ी है, सुबह ले लेना और अभी मैं सोने लगा हूँ। मैं यही सोफे पे सोऊंगा और तुम बेड पे आराम से लेट जाना क्योंकि मुझे रात को उठना है। ये बोल के वो खामोशी से वॉशरूम में चले गए। जबकि मैंने घूंघट पलट के उन्हें पीछे से देखा। एक मर्तबा भी मेरे शौहर ने मुझे दुल्हन बनी को तसल्ली से बैठ के ना देखा और मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। उन्होंने यूँ क्यों कहा? जब वो बाहर वापस आए तब भी अपना जेवर वगैरह पहने मुकम्मल तौर पे सजी हुई उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी जानिब एक मर्तबा भी नहीं देखा और चुपचाप जाए नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ने लगे। मैं इंतज़ार करती रही कि कब उनकी नमाज़ ख़त्म होती है फिर मैं उनसे बात करूं, लेकिन उनकी नमाज़ ख़त्म होने में ही नहीं आई। नमाज़ पढ़ने के बाद ना जाने वो कितने कितने लंबे नफल पढ़ने लगे कि मैं 3 घंटे यूं ही दुल्हन बनी हालत में उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरा शौहर जाए नमाज से उठने ही नहीं दे रहा था। मैं यकीन ही नहीं कर सकती थी कि इतना मॉडर्न और ख़ूबसूरत दिखने वाला आदमी इतना दीनी भी हो सकता है। अंदर ही अंदर मुझे खुशी भी थी कि चलो मेरा शौहर दीन के बहुत करीब है, लेकिन ये भी तो दीन का हिस्सा था जिसे वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अपनी नमाज पढ़ने में मगन था। जब मेरे लिए मज़ीद इंतज़ार करना नामुमकिन हुआ तो मैं चुप करके वॉशरूम चली गई, कपड़े बदल के सो गई। सुबह उठी तो देखा कि सलीम तब भी जाए नमाज पे ही बैठा था। मैंने वक्त देखा तो इशराक का वक्त हो रहा था। मैंने पूछा, इस वक्त आप कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं? तो वह नरमी से बोला, इशराक की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैं चुपचाप वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बैठ गई। कुछ ही देर में मेहमान मेरे कमरे में आने लगे और मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करने लगे कि नई आने वाली दुल्हन तो बहुत प्यारी है, यूँ है कि हाथ लगाओ तो मैली होती है। लेकिन उनकी तारीफ़ मेरा दिल अंदर से कट रहा था, क्योंकि जिससे मेरी तारीफ़ करनी चाहिए थी उसने तो एक मुकम्मल निगाह तक मुझ पे नहीं डाली थी। अगर यही कुछ करना था तो फिर मुझसे शादी करने की वजह क्या थी? लेकिन फ़िलहाल अभी मैं एक दिन की ही पुरानी दुल्हन थी। ये तमाम सवालात मैं अपने शौहर से नहीं कर सकती थी। ये तमाम बातें करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था और हिम्मत भी। खैर, रात को वलीमे का फंक्शन था। वलीमे में भी हम दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने हमारी खूबसूरत जोड़ी की तारीफ़ ना की हो, लेकिन हर तारीफ़ पे मेरा दिल कट जाता। अम्मा मेरे पास आई और बोली, तुम खुश तो हो ना? मैंने कंधे उचकाए और कहा, बिल्कुल खुश हूँ, बहुत अच्छे हैं सलीम अम्मा। एकदम से अम्मा पुरसकून हो गई और नरमी से बोली, बहुत वाहमे थे दिल में कि तुमने अपनी मर्ज़ी की शादी की, पता नहीं क्या बंदा है। बस बेटी, हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे घर को खुशियों से भर दे। मैंने मुस्कुरा के अम्मा का कहा चूम लिया, लेकिन मेरा दिल रो रहा था। दिल जा रहा था कि उनके गले लग के उन्हें पूरी रात बता दूँ कि उनकी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं, बल्कि जिस इंसान के साथ इतने शौक़ और लगाव से उसने शादी की वो तो उसे देखता भी नहीं। खैर, वलीमे के बाद जब घर ले जाने की बारी आई तो सलीम ने जाने से मना कर दिया कि आप खुद ही अपने घर हो आए। मैंने भी कोई दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे भी ज़हनी तौर पे थोड़ा बहुत आराम चाहिए था। मैं चुप करके घर आ गई। घर आने के बाद भी मैंने किसी के साथ इतनी बात नहीं की। मेरे बहन भाई भी मुझसे पूछने लगे, आलिया क्या बात है, तुम परेशान हो? मैंने हैरत से अपनी बहन को देखा तो मेरे काफ़ी करीब थी। मैंने नरमी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं चंदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो खामोशी से चुपचाप मेरे गले लग गई और कहा, पता नहीं क्यों मुझे यही लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन अगर तुम खुश हो तो अल्लाह तुम्हें और खुश रखे। मैं मुस्कुरा दी क्योंकि मैं अपने घर वालों को ये नहीं बताना चाहती थी कि उन्होंने जो कहा था वो ठीक था और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके मैंने जो कुछ किया है मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। पूरी रात मैं सोने की कोशिश करती रही लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन मेरा मकलावा लेने के लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सास आई। बच्चे में इंतज़ार कर रही थी कि तब सलीम घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो दाखिल तो तब होता जब वो मुझे लेने के लिए आया होता। ये वो पहला लम्हा था जब मुझे यकीन आ गया कि मैंने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जब आप अल्लाह के साथ मशवरा करो फिर आपको अल्लाह के दिए गए मशवरे को मानना भी चाहिए, मगर मैंने वो मशवरा नहीं माना और वही किया जो मेरे दिल को अच्छा लगा और अब वही सब कुछ भुगत रही थी। मैं चुपचाप घर आ गई। घर आके मेरी सांस में बाकी जो थोड़ी बहुत रस्में वगैरह थी वो पूरी की। मैं चुपचाप ही रही। उन तमाम रस्मों के बाद सास ने भी पूछा, क्या बात है आलिया, तुम क्यों खामोश लग रही हो? शादी के बाद वलीमे वाले दिन भी तमाम मेहमान पूछ रहे थे कि क्या हुआ, आपकी बहू इतनी चुप चुप क्यों लग रही है? हालांकि वलीमे वाले दिन तो लड़कियां काफ़ी खुश होती हैं और उनके चेहरे खिलखिला रहे होते हैं, मगर आपकी बहू तो देख के लग रहा है कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो गया हो।
मैंने नरमी से कहा, आंटी ऐसी कोई भी बात नहीं। वाकई में अब मैं चिढ़ने लगी थी क्योंकि हर कोई एक ही बात कर रहा था। मेरी बात पे वो नरमी से बोली, बेटी आंटी नहीं तो मुझे अम्मा बुलाया करो, बिल्कुल जैसे सलीम मुझे अम्मा बुलाता है। मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तो फ़ौरन ही मेरी सास ने मुझे कमरे में भेज दिया। कमरे में आके मैंने कुंडी लगाई और रूट फूट के रोने लगी। बहुत भर चुका था दिल। मैं जितना खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी उतना ही मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैं थोड़ी देर बाद सलीम बाहर आ गया और उसने मुकम्मल तौर पे मुझे नज़रअंदाज करके खुद अपना मुसल्ला लेके बैठ गया। बैठते ही मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं उसके पास गई और कहा, क्या यूं ही सारी उम्र रहेगा? वो बोला, क्यों, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आपको यहाँ पर? मैंने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल है परेशानी। यही परेशानी है कि तुम मुझसे बात नहीं करते, मेरे पास नहीं आते, बल्कि मुझे 100 मरतबा सोचना पड़ रहा है कि मैं अपने शौहर से क्या बात करूँ। हालांकि ये काम मर्दों का होता है। मेरी बात पे वो काफ़ी हैरान लग रहा था। जो भी बात है खुल के कहे, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कैसे अपने शौहर को बताऊँ। मैं चुप कर गई तो वो दोबारा फिर बोला, आलिया जो भी बात है मुझे खुल के बताएं। मैंने भी फिर एकदम से बगैर किसी लिहाज की नरमी से कहा, शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बीवी को देखना तक गवारा न करें। मैं आपके लिए हलाल हूँ, आपको चाहिए कि मुझसे बातें करें, मेरे पास आए, लेकिन आप दूर दूर होके बैठे हैं। मेरी बात पे उसने कोई भी जवाब न दिया और खामोशी से उठ के वॉशरूम में चला गया। मुझे लगा शायद आके जवाब देगा मेरी बात का, मगर जब वो वापस आया तो उसने आते ही जाए नमाज बिछा ली और नमाज पढ़ने लग गया। फिर मैं कितनी ही देर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन पूरी रात वो जाए नमाज पे बैठा रहा। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उसका मामूल ही यही था। पूरी पूरी रात जाए नमाज पे बैठा बिता देता। मैं उसका इंतज़ार करती, जागती रहती। कई मरतबा मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं बात करती तो मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो नमाज की नियत करके खड़ा हो जाता। तब तो मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी। तकरीबन 1 महीने तक मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। मैंने शादी उसकी इबादत है या नमाज से देखने के लिए नहीं की थी। अगर वो शादी निभा नहीं सकता था या उसे इबादत ही करनी थी तो मेरे साथ शादी करने की कोई वजह ही नहीं थी। इनकार कर देता या रिश्ता ही ना भेजता। मेरी सहेलियाँ भी मुझसे यही पूछती कि तुम खुश तो हो ना, और मैं मुस्कुरा के खुद को और उन्हें झूठी तसल्ली देते हुए बोलती, हाँ मैं खुश हूँ। सलीम मुकम्मल तौर पे मेरा आइडियल शौहर है, ना सिर्फ देखने के लिहाज से बल्कि वैसे भी मेरी हर बात मानता है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बात सुन के वो और एहसास कमतरी का शिकार हो जाती और कहती हैं, दुआ करो हमारे शौहर भी तुम्हारे शौहर की तरह हो जाए। इस बात पे मैंने कभी भी आमीन नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो तकलीफ़ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ कोई और लड़की भी उस तकलीफ़ से गुजरे। मैंने सलीम के साथ तो बात करना छोड़ ही दी थी, क्योंकि उसके साथ बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। एक रात यूं ही बेड पे लेटे मैं मुसलसल रो रही थी, जबकि सलीम अपनी नमाज पे नमाज पढ़ता जा रहा था। तभी मुझे फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने खोल के देखा तो वो किसी लड़के की थी। पता नहीं मैं क्या सोच बैठी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर हमारी बातचीत होना शुरू हुई। पहले पहल तो मैं कतरा कतरा के जवाब देती रही, जबकि वो लड़का मेरी प्रोफाइल की बहुत तारीफ़ कर रहा था, जहाँ पे मैंने अपनी शादी वाली तस्वीर लगा रखी थी। बातें करते करते मुझे एहसास ही ना हुआ कि मैं गुनाह की दलदल में धंसती जा रही हूँ। लेकिन कहाँ एहसास हो सकता था, भला जहाँ मुझे अपने शौहर की ज़रूरत थी वो वहाँ पे तो मौजूद नहीं था। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही अपनी कमियां पूरी करनी थी। यूं ही करते करते हम दोनों की बातचीत चल पड़ी। फेसबुक से हम लोग व्हाट्सएप पे आए और व्हाट्सएप पे दिन के वक्त लंबी लंबी कॉलें होने लगी। फिर कॉलों के बाद वीडियो कॉल। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता था, ना ही कभी एहसास हुआ था कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे लगता था मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। जब मेरे शौहर को ही मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसकी आस में बैठूँ, या मैं क्यों उसके साथ वफादारी की झूठी माला झपूँ। पूरी पूरी रात मेरा शौहर जो बेनमाज खड़ा नफल पढ़ता रहता, जबकि मैं पूरी पूरी रात यूं ही एक नामहरम इंसान के साथ बातें करने में मगन रहती। वो इंसान मेरी ज़िंदगी में इतना शामिल हो गया था कि अब मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी मेरा शौहर मेरी जानिब तवज्जो दे रहा है या नहीं। बल्कि जब कभी वो इर्द गिर्द कमरे में भी मुझे दिखाई देता तो मुझे उससे उलझन होती थी कि ये यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से चला जाए। मैं मुकम्मल तौर पे उसके वजूद से गाफिल हो चुकी थी। हाँ, घर के काम काज में मैं अपनी सास का मुकम्मल तौर पे हाथ बटाती, क्योंकि उनकी फहरिस्त में मैं बिल्कुल भी बुरी नहीं बनना चाहती थी। अब मुझे कोई परवाह नहीं थी मेरा शौहर मेरा ख्याल रखता है या नहीं। मैं अपना काम करके फटाफट मोबाइल लेके बातें करने लग जाती, और यूँ करते करते हम लोगों ने बाहर मिलना भी शुरू कर दिया। अब मिलने के लिए जाना मेरे लिए मुश्किल था, तो जब मेरा शौहर सलीम काम पे जाता तो मैं अपनी माँ के घर जाने का बहाना करके मिलने के लिए तारिक से मिलने बाहर आ जाती।
हम लोग ज़्यादा दूर ना मिलते, बस करीबी रेस्टोरेंट वगैरह में मिल लिया तो मिल लिया। 2-3 बार मिलने के बाद उसने नरमी से कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करता है और मेरे बगैर नहीं रह सकता। जब जब मैं उसे छोड़ के जाती हूँ उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। यही बात तो मैं सुनना चाहती थी। मैं क्या, बल्कि हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि कोई दूसरा मर्द दूसरे चाहे और टूट के चाहे। जबकि तारिक में हर वो खूबी मौजूद थी जो एक लड़की अपने होने वाले शौहर या बॉयफ्रेंड में चाहती है। हाँ, देखने में वो सलीम से बहुत कम था, लेकिन मुझे इस बात की अब कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि हुस्न का कुछ भी नहीं होता। सलीम कम खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन वो अपनी बीवी को तवज्जो नहीं दे रहा था, तो मेरे लिए उसका हुस्न कोई भी मायने नहीं रखता था। 2-3 मरतबा मिलने के बाद तारिक डिमांड करने लगा कि वो मुझसे होटल में मिलना चाहता है। पहले तो 1-2 मरतबा मैंने मना किया, लेकिन जब मुसलसल वो मुझे कहने लगा तो मैं उसे इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी तो यही कुछ चाहिए था। जब मेरा शौहर मेरा साथ नहीं दे रहा था तो कोई तो होता। मैं आराम से उसकी बात मान गई। अब मेरे लिए ये भी मुश्किल न रहा। हम हफ्ते में तकरीबन 1 दफ़ा यूं ही बाहर मिल लेते। यूं करते करते हमारी शादी को 6 महीने हो गए। 2 महीने निकाल के बाकी के 4 माह मैंने तारिक के साथ अपना ताल्लुक यूं ही बहाल रखा। 4 माह बाद अचानक एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ना मुझसे उठा जा रहा था, ना ही कोई काम हो रहा था, और बतली भी बहुत हो रही थी। मेरा तजर्बा तो नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं हामला हो गई हूँ, और इस बात की मुझे बहुत परेशानी थी। मैंने 2-3 मरतबा तारिक को फ़ोन किया और हर बार उसे यही कहती कि मुझे खदशा है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। पहले 1-2 मरतबा तो उसने मुझे तसल्ली दी, लेकिन जब बार बार हर आधे घंटे बाद मैं फ़ोन करके एक ही बात पूछती तो वो चिढ़ गया और उसने चिढ़ के अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। क्या करती, चारों नाचार मैं डॉक्टर के पास गई। वहाँ जाके डॉक्टर ने बताया कि हाँ भाई, तो मामला हो। अगर मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं चाहती थी कि 1-2 जगह से मज़ीद टेस्ट करने के बाद ही इस बात पे मैं यकीन करूँ, लेकिन इससे पहले मैं तारिक को मिलने के लिए रेस्टोरेंट चली गई। वहाँ जाके मैंने उसे बुलाया, फ़ोन किया, मगर उसने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने हैरत से पूछा, क्यों नहीं आ सकते तुम? मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ, शादीशुदा होकर गैर मर्द के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि आके मेरी बात सुन लो? तो उसने साफ अल्फाज में मना कर दिया और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि गैर मर्द के साथ तुम ताल्लुक़ ही ना बनाती। मैं तो वक्त गुजारी कर रहा था। ना भाई ना ये बच्चा मैं अपने सर नहीं थोप सकता। जो भी करना है खुद ही देखो, बल्कि आज के बाद मुझसे कोई राब्ता भी मत रखना, क्योंकि मैं वाकई में अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, और आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। ये कह के तारिक ने फ़ोन रख दिया, जबकि कितनी ही देर मैं हैरत से फ़ोन को देखती रही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वही शख्स है जो पूरी पूरी रात मुझसे ना सिर्फ बातें करता था, बल्कि अगर मुझे नींद आने लगती तो कहता, मैं तुम्हारी सांसों की आवाज़ सुन लूँगा, तुम अपना फ़ोन बंद मत करना। और तब मैं ख़ुद को कितना खुशकिस्मत समझती थी कि मेरे मुक़द्दर ने, अल्लाह ने कितना अच्छा आदमी भेज दिया। मगर अब मेरा पूरा बदन पूरी तरह से काँपने लगा। मैंने कई मरतबा तारिक को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। उसने एक नंबर के अलावा मेरे पास उसकी आईडी थी, वहाँ पे भी मैंने मैसेज छोड़े, लेकिन मुझे यकीन आ गया कि वो अब मुड़ के मुझे नहीं देखेगा, क्योंकि वो भी बिल्कुल एक प्ले बॉय था। रेस्टोरेंट से निकलते हुए भी मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तभी मैंने अस्पताल का बोर्ड देखा तो बगैर सोचे समझे अंदर दाखिल हो गई, क्योंकि एक दफ़ा फिर मैं उसकी बात करना चाहती थी। क्या वाकई में मैं हामला हूँ या फिर मेरा वहम है? या शायद ऐसा हो कि मैं कोई बुरा ख्वाब देख रही हूँ और अचानक से मेरी आँख खुल जाए। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं था, वाकई में मैं हामला थी। मैंने सोच लिया था कि यहीं पे जो भी दवाई वगैरह है डॉक्टर से लेके खा लूँगी, लेकिन डॉक्टर ने ये बात सुनते ही नई बातें शुरू कर दी। एक तो तुम खुश नहीं लग रही, दूसरा इस बच्चे को ख़त्म करना चाहती हो। मुझे यकीन है तुम्हारी औलाद जायज़ नहीं, और ना जाने क्या क्या बातें जो डॉक्टर कर रही थी, जबकि मैं कोने में दुबक के बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डॉक्टर को समझाऊं कि मेरे लिए ये बच्चा गिराना कितना अहम है। अगर ये बच्चा रहा तो शायद मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, या फिर मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा, और यूं शादी के 6 माह बाद ही मैं तलाक लेके नहीं बैठ सकती। मगर डॉक्टर ने सलीम को बुला लिया। यहाँ तक तो ठीक था। मुझे लगा शायद अब वो कोई बात करेगा या मुझे डांटेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी ना हुआ। घर आने के बाद भी वो इतना पुरसकून और खामोश था कि मुझे शक होने लगा, आया क्या वो इंसान जिंदा भी है या फिर चलती फिरती रूह है जिस पे किसी बात का भी असर नहीं होता। ना उसे कोई बात बुरी लगती है, ना ही कोई बात अच्छी लगती है, ना वो मेरे करीब आता है, ना ही उसे इस बात पर तकलीफ़ हुई कि मेरे पेट में किसी की नाजायज़ औलाद पल रही है। मैं मुकम्मल तौर पे उस इंसान से आजिज़ आ चुकी थी। पूरी रात मैं उसके आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना आया। अगली सुबह कमरे में आया तो मेरी आंखें सुर्ख होके मतरूम हो रही थी।
सलीम ने अलमारी खोली और दराज से काफ़ी सारे पैसे निकाले। पैसे लेके वो बाहर जाने लगा तो मैंने नरमी से कहा, कहाँ जा रहे हो? ये पैसे देने हैं किसी को? किसको देने हैं? मैं तो उससे बात करना चाहती थी, तभी मैंने बड़े आम से लहजे में पूछ लिया, एक इंसान को देने हैं। ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि जानवरों में तो पैसे लेने देने का कोई रवाज नहीं, किसी इंसान को देने हैं। इतने पैसे एकदम कुछ ख़रीदा है क्या? उससे नफ़ी में सर हिलाया। वो काफ़ी परेशान हो गया था मेरे सवालों से और मुझे अब मज़ा आने लगा, क्योंकि मुझे नॉक कर लिया था उस इंसान ने। वो बाहर खड़ा है, मुझे देर हो रही है। लेकिन मैंने भी कंधे उचका के कहा, जब तक मेरी बात का जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सच सच बताओ, किसे देने हैं पैसे? एक लड़के को देने हैं, दे के आता हूँ, फिर आके बात करते हैं। ये बोल के वो जाने लगा तो मैं भागते हुए उसके सामने आके खड़ी हो गई और कहा, सलीम, मैंने 6 महीने तक तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त की, लेकिन अब मेरे लिए मज़ीद खामोशी बर्दाश्त करना बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। ये पैसे बाद में देना, मुझे तुमसे बात करनी है। वो नरमी से बोला, बताओ क्या बात है? मैंने ज़मीन को देखते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मैंने ये सब कुछ किया? तुमने ना कोई रद्द-ए-अमल दिया, ना ही कुछ और, ना ही मेरे करीब आते हो, ना ही मेरे किसी के करीब जाने पे तुम्हें एतराज़ है। क्या तुम्हें ये बातें बुरी नहीं लगती? मैं ये बातें करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरे दिल में मज़ीद इन बातों को रखना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो नीचे देखते हुए मैंने जो भी बातें मेरे दिल में थी कर दी। मगर सलीम ने अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सलीम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। चिढ़ के मैंने देखा तो उसकी आंखें काफ़ी सुर्ख हो रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, वो रो रहा था या फिर कोई एलर्जी वगैरह थी। एक मरतबा आप पीछे हट जाओ, मुझे ये पैसे देने दो, फिर आके तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन मैं भी अपनी बात पे अटकी हुई थी कि मैं तुम्हें अपनी बात मुकम्मल किए बगैर नहीं जाने दूंगी। 6 महीने तक बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब मैं तुम्हारी चुप बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें बोलना पड़ेगा। मेरे हर सवाल का बेशक थोड़ा बहुत ही जवाब दो, लेकिन दे के जाओ। मैं दोबारा इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मैं किसी के साथ रातें बिताई, मगर तुमने न मुझ पे कुछ चिल्लाए न चीखे। कम से कम मेरे मुंह पे एक थप्पड़ ही लगा दो, ताकि मुझे एहसास हो कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया। मैं बोलती जा रही थी, तभी उसने अपने दोनों हाथ मेरे आगे बांध दिए और रोते हुए बोला, एक मरतबा मुझे बाहर जा लेने दो, फिर आके हम बात करेंगे। वो काफ़ी बेबस लग रहा था। मैंने बगैर कुछ कहे दरवाज़ा छोड़ दिया और वो लंबे लंबे डाग भरता हुआ बाहर चला गया। मेरे दिल की हालत पीछे काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो उथल पुथल हो रहा था। यूँ लग रहा था कि सलीम कुछ गलत करने गया है। इतने पैसे, नहीं नहीं, कुछ तो बात है, वो कुछ तो छुपा रहा है। पता नहीं मेरा रब ये चाहता था कि मैं सलीम के पीछे जाऊं, या मेरे मुकद्दर में ही ये कुछ लिखा था। मैंने जूता पहना और दुपट्टा लिए बगैर ही बाहर चली आई। हमारी बैठक से खिड़की बाहर गली में खुलती थी। इतना तो मुझे यकीन था कि वो गली में खड़ा होगा, क्योंकि अगर वो बाहर कहीं जाता तो अपनी मोटरसाइकिल लेके जाता, लेकिन वो मोटरसाइकिल घर पे ही मौजूद थी। मैं बैठक में आ गई और खिड़की खोल के जैसे ही देखा तो जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। मैं मर के भी यकीन नहीं कर सकती थी जो मंजर मैंने अपने सामने देखा। मेरे सामने सलीम वो पैसे एक लड़के को दे रहा था, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तारिक था। चंद लम्हात बाद तारिक वो पैसे लेके चला गया और सलीम कितनी ही देर उसे वहाँ पे खड़ा देखता रहा। मैं भी अंदर बुत बन के खड़ी थी। मैं ऊंची ऊंची तारिक को बुलाना चाहती थी कि कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे बर्बाद करने के बाद तुमने मुड़ के मेरी खबर तक न ली। तुम अब मेरे घर आए हो, मेरे शौहर से पैसे ले रहे हो, कम से कम मेरा हाल चाल ही पूछ के जाते। मैं वहीं पे खड़ी रही। शायद सलीम कमरे में गया, फिर दोबारा बैठक में आया तो मुझे वहीं बुत की हालत में खड़े देख के नरमी से बोला, तुमने देख लिया है ना सलीम को? सलीम को? अरे नहीं, उसका नाम तो तारिक है। मैंने नरमी से कहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो नफ़ी में सर हिला के बोला, नहीं, उसका नाम भी सलीम है। मुझे यूँ लग रहा था कि वो बोल रहा है, लेकिन उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसे आगे बढ़ के मेरा हाथ थामा और अपने साथ कमरे में ले गया। मैं अभी खामोशी से कमरे में चली गई। मेरा पूरा वजूद रुई के गाले की मानद हो रहा था, जैसे किसी बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुमने पैसे क्यों दिए उसे? उसकी खातिर ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल के मेरे आगे किया। मैंने जब उसे खोल के देखा तो उस पर तलाकनामा दर्ज था। ये किसकी तलाक है? मैंने हैरत से सलीम को देखते हुए पूछा तो वो रोते हुए बोला, तुम्हारी? क्या मतलब? तुमने मुझे तलाक दे दी? मैंने हैरान हुए बगैर बड़े आम लहजे में पूछा, क्योंकि जो कुछ हो रहा था मेरा दिमाग कबूल ही नहीं कर पा रहा था। तो वो नफ़ी में सर हिला के बोला, नहीं, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दी है। अब की बार मैं हैरान हुई और कहा, तुम ही हो ना मेरे शौहर? तो वो नफ़ी में सर हिला के बोला, नहीं, मैं नहीं हूँ, वो था तुम्हारा शौहर। फिर कौन है मेरा शौहर? अब की बार मुझे धचका लगा तो वो संजीदगी से बोला, सलीम। मेरा नाम भी सलीम है, और जिस लड़के को तुम तारिक बुलाती हो वो भी सलीम है, बल्कि वही तुम्हारा शौहर है। लेकिन क्यों? मुझे समझ नहीं आया। मैं क्या पूछूं? जो मुंह में आया बोल दिया। मुझे माफ़ कर देना आलिया,
میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میرے لیے خود یہ بہت ضروری تھا۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ میں نے انہیں کئی مرتبہ انکار کیا، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ گھر کے لوگ باتیں کرنے لگے، میرے خالہ کے بیٹے کو علم تھا کہ میں نامرد ہوں، اس نے میری بات پورے خاندان میں پھیلا دی۔ جب بات میری بے عزتی پہ آئی تو میں شادی کے لیے مان گیا، اور میں نے پھر وہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے نام کا ایک لڑکا تلاش کر کے اسے بھاری پیسے ادا کیے اور کہا میری جگہ وہ تم سے نکاح کرے، اور جب تم صاحب اولاد ہو جاؤ تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ ایسا ہی ہوا ہے، تبھی میں تم سے دور رہتا تھا، تمہارے قریب نہیں آتا تھا۔ سلیم نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، پھر اب جب تم حاملہ ہو گئی تو تمہیں طلاق دے دی۔ یہ طلاق بچہ پیدا ہونے کے بعد تم پہ لگ جائے گی، اس کے بعد ہم دونوں چپ کرنے کا کر لیں گے۔ میں نے جو کچھ کیا تمہارے ساتھ مجھے معاف کر دینا۔ لیکن خود کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بول رہا تھا جبکہ مجھے اپنا وجود ایک جوکر کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جس کے ساتھ جو بھی آئے جب دل چاہے کھیل کے چلا جائے، جیسے ان دونوں آدمیوں نے کیا۔ ایک نے میری قیمت لگائی تو دوسرے نے مجھے خرید لیا، پھر خرید کے واپس بھی کر دیا، اور اب وہ بیچنے والا ہی دوبارہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموش ہوئی، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب میری بچی اس دنیا میں آ گئی تو میں سلیم عرف طارق کی طرف سے طلاق تو ہو گئی، لیکن میں نے دوبارہ اپنے شوہر جو کہ لوگوں کے سامنے بنا تھا لیکن حقیقت میں میرا شوہر نہیں تھا، اس کے ساتھ دوبارہ کبھی بھی نکاح نہیں کیا، اور اپنے بچے کو لے کے گھر سے بھاگ گئی۔